کشمیر کا ایشو ویسے تو پوری امت کے لیے ایک ایسا رشتہ ہوا زخم ہے جو گزشتہ 74 اور 75 سال سے امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج بھی ہے ہماری اتحاد، ہماری یگانگت کے حوالے سے، لیکن پاکستان کے ساتھ تو اس کا تعلق اور بھی مضبوط اس انداز سے ہے کہ صرف کلمے کی بنیاد پر جو سب سے بڑا تعلق ہے وہ تو ظاہر کلمے کی بنیاد پر ہے، اور اللہ رب الرحمن نے رہتی دنیا تک قرآن عظیم الشان میں جو مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے والوں کو، اہل ایمان کو ہدایت دی ہے کہ تم کیوں نہیں ان بستی کے بے بس بچوں عورتوں کی پکار کے اوپر اٹھتے ہو کہ جو بے بس پا کر دبا لیے گئے ہیں اور دشمن ظاہر ہے کہ ان کے اوپر حملہ زن ہے۔ ایک تو یہ ہمارے ایمان کی پکار بھی ہے، دوسرا جو پاکستان کی شاہرگ ہے جس کو کشمیر ہم کہتے ہیں، اور قائد ملت محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل بجا کہا تھا کہ ہمارا جو پانیوں کا انحصار ہے وہ کشمیر کی وادی کے ساتھ ہے، اور وہیں سے یہ پانی کے سوتے پھوٹتے ہیں جو پاکستان کی زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور بجا طور پر اسے ہم شاہرگ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری شاہرگ ہے جو 75 سال سے ہندو بنیے کے پنجہ سردار کے اندر موجود ہے۔ اور پھر تیسرا تعلق جو ہمیں اس کے اوپر سوچنے اور اس پر ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے دل کو مسترب کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ انسانی بنیادوں پر ہے، یعنی جو تیسرا تعلق ہے کہ انسانی بنیادوں کے اوپر بھی کسی معاشرے کے اندر ایسا ظلم روا نہیں رکھا جاتا کہ جس طرح سے وادی مقبوضہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ نہتے انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مذہب کی بنیاد کے اوپر، دین کی بنیاد کے اوپر، رنگ اور نسل کی بنیاد کے اوپر اتنی قتل و غارت گری اور اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کرنا، یہ بھی ایک انسانیت کا ایک المیہ ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی حمیت جو ہے اور جو اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بے غیرتی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ معصوم بچوں کا بھی خیال کرنے سے قاصر ہے، بہنوں اور ماؤں اور بہنوں اور بیٹیاں ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہیں، ان کی بھی عصمتیں لوٹنے سے وہ گریزاں نہیں ہوتے، نوجوان نسل کو تحقیق کیا جا رہا ہو، یعنی جو فرعون کے مناظر ہمیں قرآن میں بتائے ہیں کہ جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لیکن یہ تو اس سے بھی آگے کی کہانی ہے، صرف اب نوجوانوں عمر کا انسان، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ بچے ہوں، ان کے ساتھ یہ رویہ 75 سال سے کیا جا رہا ہے، اور صرف ان کا مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں ہماری آزادانہ مرضی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے، یعنی وہ کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے کہ جو ایک انسان نہیں مان سکتا، ظاہر ہے انسان تو آزاد ہے، لیکن اس ایسی قسم پرسی کی حالت، یعنی بعض اوقات تو ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے، سچی بات تو یہ ہے انسان کسی اپنے پیارے کو اپنے بستر کے ساتھ، اپنی چارپائی کے ساتھ جہاں وہ سوتا ہے اسی کے ساتھ اس کو دفن کرنے پر مجبور ہو جائے، یعنی کبھی تصور کیا کہ چھوٹے سے کمرے کے اندر انسان بھی سو رہے ہوں، انسان کے جو پیارے ہیں وہ وہیں پہ دفن کر دیے جائیں کہ جنازہ اٹھانے کی اور نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے، دوائیاں بازار میں موجود ہوں لیکن دوائی تک رسائی ممکن نہیں ہے، غذائی اجناس موجود ہوں لیکن ان تک پہنچنا بند کر دیا گیا ہو کرفیو کے نتیجے کے اندر، اور اب تو بات اور آگے بڑھ گئی ہے، یعنی پہلے تو یہ تصور تھا کہ بھئی اکثریت مسلمانوں کی ہے وہاں پر، ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، خود عالمی فورم نے طے کیا، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی اور نے طے کیا، خود مہذب دنیا کے جو بڑے بڑے ممالک ہیں جو اپنے آپ کو سلامتی کونسل کہتے ہیں انہوں نے یہ طے کیا کہ بھی ان کو آزادانہ مرضی کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے، شہادت پاس نہیں، سب نے اس کو آنر کیا، لیکن ڈھٹائی بے شرمی کی ایسی ہے کہ اس کو تحقیق کیا گیا، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب تو ایک مستقل ایجنڈے کے ساتھ انہوں نے نسل کشی بھی کی ہے، اور اب تو انہوں نے اس جگہ پر ہندوؤں کو لا کر بسانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے کہ یہاں جو وادی کی اکثریت تھی مسلم کی اس کو تبدیل کر کے غیر مسلم کی آبادی جو ہے وہ بڑھا دی جائے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ دنیا کو کہیں کہ جی ہاں، یعنی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت معاملہ چل رہا ہے، تو ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، ظاہر ہے یہاں پر کچھ بھائی یہ سوال اٹھائیں گے بھی اور لوگ بھی اٹھاتے ہیں کہ جی یہ 5 فروری کو ہی آپ کے دل میں مروڑ کیوں اٹھتا ہے، یعنی یہ تو اب علامت بنی ہے نا جی 5 فروری تو، ویسے تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے دل کے اندر بستے ہیں ہمارے بھائی اور بہن،
हमारी दुआएं, हम इल्तिजाई कर सकते हैं, दुआई कर सकते हैं। जिन्होंने इकदाम करना है वो तो हुकूमतें होती हैं, और मैं मतलब किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा। हमें तो अब इस पर सोचने की ज़रूरत है कि जिसकी भी हुकूमत आती है आखिर वो नाकाम क्यों कर दी जाती है, और कौन से पसे पर्दा हाथ हैं कि जो इस मुल्क के भी दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के आवाम के भी दुश्मन हैं। और ज़ाहिर है कि ये जुर्रतमंद मौक़िफ़ तो कोई जुर्रतमंद लीडर उठा सकता है कि जो कश्मीर के मामले के ऊपर भी अपनी जुर्रत का इजहार करे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इतने दिल वाले मौजूद हैं कि जो अगर हमारा हुक्मरान कोई फ़ैसला करे, लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं, लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, काम के लिए तैयार हैं। पहला माजी भी हमारा गवाह है। लिहाजा इस सारे तनाजुर के अंदर आज की जो हाज़िरी भी है, आप देखिए कि हमने मेहनत की, लोगों को बुलाया। काश तो कश्मीर के मुसलमान हैं, किसी को ज़ाती एजेंडा हमारा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक यकजहती का पैगाम हम दें कि पूरी जो पाकिस्तान की मिल्लत है वो ठीक है कि मुख्तलिफ टुकड़ों के अंदर बटी हुई है, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिन इश्यूज़ के ऊपर कोई सियासत का मामला नहीं है, कोई इख्तलाफ का मामला नहीं है, बल्कि हम एक भरपूर मैसेज देना चाहते हैं कि हम इकट्ठे हैं, आपकी पुश्त पर हम मौजूद रहेंगे जब तक हमारे सांसों में सांस है। इंशाअल्लाह कश्मीरियों का साथ जो भी मुमकिन हो सकेगा हम जारी रखेंगे। ये हमारा दीन का, ईमान का तकाजा है। अल्लाह ताला आप सबको, ज़ाहिर है कि भी अल्लाह की तौफीक है ना कि वो किसको तौफीक देता है इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ये भी मेरे और आपके सोचने की बात है। जो लोग नहीं आ सके, हो सकता है उनके मसाइल हों, मुश्किलात हों, लेकिन ज़ाहिर है कि ये भी तुम रब के आगे अगर कोई चीज़ पेश करेंगे तो यही पेश करेंगे ना कि जो हमारे इख्तियार में था, यार अब हमने आवाज़ उठाई अपने बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, जो हमारे इख्तियार में था हमने किया है। और ये ज़ाहिर है कि ये जिहाद है आज के दौर का, और इसकी कदर है अल्लाह की निगाह के अंदर। इंशाअल्लाह आप सब लोग जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम भी अता फरमाएगा कि इस कौज़ के लिए आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है। उन के बैन अवी फ़ोरम से भी पहुँचती है। अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाता है। 1990 से लेकर आज तक यानी 31 साल हो गए और ये 32वां साल शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह शहर बावलपुर के अंदर भी कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए तमाम मुताबिर फिक्र, तमाम पार्टियों के लोग जो हैं अहलियान बावलपुर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं अपने गेट के ऊपर, यहाँ पर उनके साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इत्तिफाक और इत्तिहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या वजह है? हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कश्मीरियों समेत जहाँ पर भी मुसलमान मार खा रहे हैं, उसकी वजह क्या है? अगर हम गौर करें तो उसकी बुनियादी वजह मुसलमानों के दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद का ना होना है। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि एक वक्त था, मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ, हमारा बचपन था, हम हर गली से गुज़रते हुए ये नारा लगाते थे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन आज हम देख रहे हैं एक सोची समझी साजिश के तहत देख रहे हैं कि एक तरफ बेबसी है और दूसरी तरफ बेहिसी है। जब हम कौम को देखते हैं तो इस बात में कोई शक नहीं है, उनके दिल अपने कश्मीरी भाइयों के लिए धड़कते हैं, हमेशा आवाज़ भी बुलंद करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम अपने हुक्मरानों को देखते हैं, मैं सिर्फ किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, पिछली भी जो हुकूमतें हैं हम उनको देखते हैं तो वहाँ हमें बेहिसी नज़र आती है। तो इस वक्त बेबसी और बेहिसी का हम शिकार हैं। और ये भी मैं अर्ज़ करता चलूँ, जैसा कि हमारे मोहतरम सैयद ज़ीशान अख्तर साहिब ने फरमाया कि जिन्होंने इक़दाम उठाना था वो भी अब सिर्फ एहतिजाज पर गुजारा कर रहे हैं। तो हम समझते हैं, और ये जो मुजरिमाना खामोशी है, मैं समझता हूँ कि अब हमें ये तर्क करना होगी, और कम मसला कश्मीर के हल के लिए मैं समझता हूँ कि पूरी मुस्लिम उम्मा को इस वक्त उठ खड़ा होने की ज़रूरत है।
कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है इन्नमल मोमिनूना इख्वा, और हदीस पाक में है अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। अगर हम अब भी अपने उन मुसलमान भाइयों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कौम को बाहर निकलने की ज़रूरत है। और बहावलपुर में जैसा कि फरीद गेट पर हम सब इकट्ठे होते हैं, तो आप ये हरगिज़ न समझें कि ये सिर्फ जमात इस्लामी का काम है, और ये भी हरगिज़ न समझें कि ये सिर्फ उसमें जमात इस्लामी ने अपना किरदार अदा करना है। बहैसियत मुसलमान हम सब ने उसमें अपना हिस्सा डालना है, और बहैसियत मुसलमान हम सब ने वहाँ पर अपने भाइयों से इजहार यकजहती के लिए इकट्ठा होना है। मैं आखिर बनाएंगे तो हम तो पहले आपके साथ होते हैं, अब भी इंशाअल्लाह आपके साथ हैं। अल्लाह मुफ्ती मतलूब सईदी साहब तशरीफ़ फरमा है, अल्लाह कारी जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी साहब, मिनहाजुल कुरान और जयूबी और जमात अहले सुन्नत हमेशा आपके साथ होती है। तो इंशाअल्लाह इस मरतबा भी 5 फरवरी को जो आप प्रोग्राम बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। उलमाए किराम की खिदमत में मेरी गुजारिश है कि जुमा के खुतबात में भी वो कश्मीरियों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, आवाज़ बिला तफरीक रंग व नस्ल पार्टियों के इख्तलाफ और तमाम तासुबात से बालातर होकर इंशाअल्लाह हम कश्मीरियों के साथ अपनी अपनी शनाख्त के साथ इजहार यकजहती के लिए जमा होंगे। मैं अपने अगले मुकर्रर मोहतरम जनाब इमरान है तौहीद की बुनियाद पर हम सब जमा हों, और जैसा कि भाई ने कहा कि इस्लाम ममालिक हैं और सबके पास फौजें हैं, असलहा है, मिसाइल हैं, एटम बम है, लेकिन खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। वजह क्या है? मुसलमान कम थे, 313 थे लेकिन गालिब थे। आज करोड़ों अरबों हैं लेकिन मगलूब हैं और इंतहाई बेबसी की तस्वीर बने बैठे। उन लोगों को मजबूर करें कि वो लोग ऐसी पॉलिसियां बनाएं, ऐसे जरा इस्तेमाल करें जिससे जो है वो मुसलमान सुख चैन की जिंदगी बसर कर सके। मैं काफी अर्सा से अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक मुजाहिदीन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इत्तेमाम किया है, और जो यहाँ पर मुज्तमिल हुए हैं, जमा हुए हैं, अल्लाह सबका कबूल फरमा ले। 5 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के अंदर कश्मीर डे मनाया जाता है। उनसे अपनी मोहब्बतों का इजहार और जो जुल्म और सितम हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए छुट्टी भी होती है सरकारी सतह पर, और पूरे पाकिस्तान से बच्चे बच्चियां बूढ़े नौजवान बाहर निकल कर कश्मीरियों से इजहार यकजहती करते हैं। यानी कि मुतहर्रिक शख्सियत थे, बुढ़ापे के आलम में भी तमाम सियासतदानों को बताते थे, अपने होने का एहसास दिलाते थे। उनके अंदर इतना दम खम था कि उनके धरने और उनकी रैलियाँ और उनकी सरगर्मियाँ जो है वो मारूफ थी, और वो दरो दीवार पर लिखा हुआ नजर आता था ज़ालिमों काजी, बहुत हो ज़ालिमों काजी। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी बात है कि ये इंशाअल्लाह उस मिशन को जारी रखे हुए हैं। हम इनके साथ शेख साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह भरपूर शिरकत करके इतने खूबसूरत तरीके से और भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएंगे कि सारी दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए, पाकिस्तान में बसने वाला अहले सुन्नत हो, अहले तशय्युअ हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन कश्मीरियों के मामले में वो एक हैं। अल्लाह ताला कोई तस्करी बुनियाद के ऊपर जद्दोजहद कश्मीर की नहीं शुरू हुई। सैयद अली गिलानी साहब जो इसी साल दुनिया से रुखसत हुए, अल्लाह उनको गरीब रहमत फरमाए, और यानी ये जो काज है ये सबका काज है। सैयद अली गिलानी साहब अमीर जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर भी रहे हैं, वो रुकन जमात थे, लेकिन यह है कि वो तमाम तहरीकों और तमाम तंजीमों को साथ लेकर चलते थे। उन्होंने पहले अल-फलाह के नाम से अकेडमियाँ बनाई, स्कूल और कॉलेजेस बनाए और नस्ल की आबियारी की ताकि वो अपना और हम इंशाअल्लाह साथ हैं, इकट्ठे हैं, और जिस तरीके से अफगानिस्तान में
افغانیوں نے امریکہ کو، اسرائیل کو، رشیا کو وہاں سے نکال باہر کیا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھائیوں کی مدد کے ساتھ ہم وہاں پر غازی جو ہندوستان کی فوج ہے ان کو بھی نکال باہر کریں گے اور کشمیر کو پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ 5 فروری جس طریقے سے جوش و جذبے کے ساتھ ہم منا رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی بھرپور طریقے سے منائیں گے، اور میں پوری کوشش کروں گا اپنی جماعت کے دوستوں کو ساتھ لے کر آؤں گا، اور بھرپور طریقے سے آل پارٹیز کی جو یکجہتی کشمیر ریلی ہے اس میں شرکت کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں پر ہم بیٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے۔ بچپن سے میں ایک لفظ سنتا نہیں ہے کشمیر بنے گا پاکستان، بلکہ یہ تکمیل پاکستان، اور تکمیل پاکستان میں کسی رنگ، مذہب یا گروہ کی کوئی وہ جگہ نہیں ہے۔ جب ہم اگر ہم پاکستان سے مخلص ہیں تو کشمیر ہمارا وجود کا حصہ ہے، لیکن بدقسمتی سے بچپن سے میں سنتے آ رہا ہوں اور دیکھتے آ رہا ہوں کہ ہم تقریروں کی حد تک ہیں، ہم اکٹھ ہونے کی حد تک ہے، لیکن اس مشن کو آگے تک نہیں بڑھا سکتے، کیونکہ اس مشن کو بڑھانے کے لیے میرے نزدیک 2 عوامل ہیں۔ پہلا عوامل یہ ہے کہ عوام کا کام یہی ہے کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں اس کا ذکر کریں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم باہر اکٹھے ہوں کہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ہم جلوس کے ذریعے دنیا پر آشکار کریں کہ ہمیں تکلیف ہے کہ ہمارے بازو کو ہم سے جدا رکھا گیا ہے، اور وہاں پر دن و رات ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں حیران ہوں دنیا کی وہ انسانیت کی تنظیموں پر جو کہ دنیا میں اپنا نام انہوں نے اس لیے روشن رکھا ہے کہ ہم انسانیت خدمت کرتے ہیں، لیکن وہ اندھے ہو گئے یا ان کی آنکھیں بند کیوں ہیں کہ انہیں نہ فلسطین میں مرتے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں، نہ کشمیر میں بیوہ ہوتی ہوئی عورتیں نظر آتے ہیں، نہ بھائی بہنوں کی جدائی نظر آتی ہے۔ دن رات سب و شتم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن کہیں دنیا میں یہ آواز بلند کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ مسلمان جو کل مسلمن اخوتوں تھے وہ آپس میں دستوں کے زبان ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پہلا حصہ جو عوام کا تھا اس میں تو کافی پذیرائی ہے، لوگ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، جلوس بھی کرتے ہیں، اپنے آواز کو آگے بھی بلند کرتے ہیں، لیکن حکومتوں کی سطح پر جو کرنا چاہیے تھا وہ اتنا نہیں ہو سکا۔ تو مجھے میری حکومت، دنیا میں آج جمہوریت کا بہت دعویٰ کیا جاتا ہے، بہت شور بچایا جاتا ہے، لیکن جمہوریت کیا؟ جمہوریت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ طاقتور ہے۔ کیا کشمیریت کے لیے کوئی جمہوریت نہیں ہے؟ کشمیریت کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے اور جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکے؟ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور کیا یہ بربریت نہیں ہے کہ ایک بیٹے کو ماں سے جدا کیا جائے، ایک عورت کو بیوہ کر دیا جائے؟ ان کا قصور کیا ہے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں؟ اس کے علاوہ ان کا کوئی قصور نہیں۔ میں اقوام نظریات بنتی ہیں، اور اگر نظریات کمزور ہو جائیں تو قوم معذور ہو جاتی ہے۔ جہاں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ضروری ہے۔ مسلمان جہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے وہ ایک قوم ہے، وہ ایک ملت ہے۔ علامہ نے اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشمیر۔ اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ، اور کشمیر کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے کہتے ہم 76 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن کشمیر کے لیے اب تک ہم سمون، بکمن، امیون، گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ بڑے معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم آتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، خیالات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن کر کیا سکتے ہیں؟ میرے دوستوں ساتھیوں، میرے قاری شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بات کہی تھی کہ اگر کشمیر کے لیے ہمیں 1000 سال تک جنگ لڑنی پڑے تو ہم اس کے لیے لڑیں گے۔ اور حضرت مولانا مودودی نے ایک بات کہی تھی، کوٹ کر رہا ہوں سر، ذرا سنیں، انہوں نے کہا تھا کشمیر کے مسئلے کا واحد حل
अल जहाद अल जहाद अल जहाद। क्या ये है या नहीं है? लेकिन हम इन तमाम चीजों से दूर हैं। हम बातें करते हैं और बातें करके चले जाते हैं। कश्मीरी मुजाहिदीन जो 906 दिन हो गए हैं उनको लॉकडाउन है, और वो लॉकडाउन उस पर शुरू हुआ जब हमारे वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब अमेरिका में तकरीर की, और तकरीर के दूसरे दिन ही वहां लॉकडाउन लगा दिया। बड़े बदनसीबी के साथ कहूंगा, जो 73 साल 370 खत्म ना कर सके, 35 खत्म ना कर सके, वो सिर्फ एक मुलाकात के बाद सदर अमेरिका के बाद वो 370 भी खत्म हो गई और 35 भी खत्म हो गई। अभी हम बात कर रहे थे भाई मेरे कि वो मंसूबा क्या था? वो वही मंसूबा था जो इस्राइल का मंसूबा था कि इस्राइल में यहूदी बस्तियां आबाद की जाए, इसी तरह कश्मीर के अंदर हिंदू बस्तियां आबाद की जाए। मैं समझता हूं कि हम ये गलत कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। हम अक़वाम मुत्तहिदा में चढ़ी तकरीर करने के बाद हम समझते हैं कि ऐसा नहीं है। हमें कश्मीर के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें कश्मीर के लिए जात करनी पड़ेगी। अगर हम अपने जात के ऊपर आ गए तो खुदा की कसम कश्मीर आजाद हो जाएगा। हमारी कश्मीरी आवाम क्या सोचती है? 302 दिनों से एक चीज सोच रही है कि एटमी ताकत पाकिस्तान, टेक्नोलॉजी ताकत पाकिस्तान हमें सुबह आजाद करा देंगे। लेकिन जब सुबह उठते हैं वो ख्वाब अधूरे का अधूरा रह जाता है, वो ख्वाब अधूरे का अधूरा रह जाता है। आप कहें अक़वाम मुत्तहिदा आपका रेफरेंडम कराएगा? नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा लूली लगड़ी है, मोहताज है, अमेरिका की मोहताज है। हमें जात करना पड़ेगा अमेरिका के खिलाफ भी, और तमाम यहूदी कुव्वतें जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लश्कर कशी कर रही है उनके खिलाफ भी जात करना पड़ेगा। मैं जमात इस्लामी के कायदी और उनके कारकुनान को खराज तहसीन जमात जो भेजो बसरात इस्लामी इस्लाम के साथ मुंसिफों को, जो दुनिया के मुंसिफ हैं उनको भी पुकारा है, ललकारा है कि ये कश्मीरियों के साथ, माँ बहनों के साथ और हमारे मुसलमानों को कैसे ये जुल्म की इंतहा हो रही है, और हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। और मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत पढ़ी है, वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, वजाहिदू फिल हक़। और ये जब तक हम लोग जिहाद कश्मीर को किस तरह इन ताकूती ताकतों ने कब्जा किया हुआ है, और इंशाअल्लाह भरपूर को अलामती तौर पर जिंदा रखा हुआ है आप लोगों ने। तो दूसरा, हमारे मिनहाजुल कुरान के भाई इन्होंने अपना एहतजाज में इनको रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ। इन्होंने मीडिया की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार किया। तो सर इस तरह है कि आज भी अगर आप देखें नवाए वक्त का 907वां दिन है आज, तो एक बॉक्स जो है वो उसकी अपना जो हमारी जदोजहद आज़ादी कश्मीर है, वो जो लॉकडाउन लगा हुआ है वहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉक्स फ्रंट पेज के ऊपर। मेरे अपने अखबार में जहाँ पाक साहब में हर 15 दिन बाद हमारे संडे मैगजीन में पूरे 2 पेज जो है वो जो हमारी जदोजहद है उसकी तारीख या उसके ऊपर जो है वो किए जाते हैं। उसके अलावा आप लोग हर दफ़ा प्रोग्राम होते हैं उनकी भरपूर हम लोग मीडिया कवरेज करते हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ी सी हमारे साथ ज्यादती की है, तो मैं अपना एहतजाज उनको रिकॉर्ड करवाना चाहता था। दूसरा एक छोटी सजेशन है मेरी, वो ये है कि ये जो कश्मीर का इशू है ये एक मजहबी लिहाज से तो एक इशू है ही, हमारे लिए मुसलमानों का एक इशू है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अक़लियतों की नुमाइंदगी जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है या उनको भी मेरे ख्याल में हमें इंगेज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है डेफिनेटली वो भी तो हो रही है ना। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, इससे एक तो इंटर रिलीजियस हार्मनी को भी फ्लो मिलेगा, और दूसरा मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल मीडिया जो है
वो भी इसको ज़्यादा हाईलाइट करेगा। अगर आप लोग इस पर थोड़ा सा तवज्जो दें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, आपने मौका दिया मुझे, थैंक यू। और पूरी जमात इस्लामी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हर साल 5 फरवरी के हवाले से उससे पहले ऐसा एक सेमिनार, ऐसा इज्तिमा, ऐसा इजलास हर साल रखते हैं जिसमें यौम कश्मीर के हवाले से याद दहानी होती है। क्योंकि जब दोस्त इकट्ठे होते हैं, कश्मीर पर बात होती है, यकीनन हमारी यहाँ कश्मीर के हवाले से बात करना कश्मीरियों के लिए खुशी का बायस होता है। जैसे और अगर पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो कश्मीर का इशू से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम साहिबान जो यहाँ आज के इस प्रोग्राम के अंदर शरीक हुए हैं, हम थोड़ा खिताब करना मकसूद नहीं है, आवाज़ हक उठाना मकसूद है, और ऐसी बात नहीं है। जब भी इन्होंने बुलाया हम जाते हैं, चूँकि ये किसी फिरके की बात नहीं है, किसी मसलक, किसी मज़हब की बात नहीं है, उसे ठेस पहुँचती है, उसे तकलीफ पहुँचती है, वो बहुत रंजीदा हो जाता है। ये जो काशिफ साहब ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि जितने भी हुक्मरान हैं, जो पॉलिसी साथ हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, उनकी